موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا کیس، مرکزی ملزم کی گرفتاری لاہور پولیس کے لیے چیلنج بن گئی۔ عابد اب تک قانون کی گرفت سے باہر، ٹیمیں سندھ اور خیبر پختونخوا بھی روانہ۔ ملزم کی اطلاع دینے والے شخص کے لیے 25 لاکھ روپے انعام۔ کورونا سے 7 افراد جاں بحق، اب تک 6415 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,05,031 شہری متاثر۔ 24 گھنٹے کے دوران 645 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 6572 رہ گئی۔ تعلیمی اداروں پر کورونا کے وار، پنجاب میں 32 بچے اور اسکول سٹاف کے 2 ارکان وبا کا شکار۔ سندھ میں 89 طلباء اور ملازمین میں وائرس کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں 13 اساتذہ کے ٹیسٹ مثبت۔ بلوچستان میں 1 یونیورسٹی، 2 اسکول بند۔ سندھ میں تعلیمی ادارے کھولنے کا دوسرا مرحلہ مؤخر۔ 22 ستمبر سے مڈل کلاسز شروع ہوں گی۔ سعید غنی مڈل کلاسز کے اجراء کا شیڈیول تبدیل نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا سندھ حکومت کے فیصلے پر رد عمل۔ دنیا نیوز کی خبر پر ایکشن، طلباء کے لیے بڑی خوشخبری۔ طویل انتظار کے بعد پنجاب میں میٹرک نتائج کا اعلان آج ہوگا۔ تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ تمام 9 تعلیمی بورڈ شام 5 بجے اعلان کریں گے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن یاسر ہمایوں۔ نواز شریف سیاست میں ایکٹیو، بلاول بھٹو کی دعوت پر اے پی سی میں ورچوئل خطاب کا پلان۔ سزا کے بعد کسی بھی فورم پر سابق وزیر اعظم کا یہ پہلا خطاب ہوگا۔ اسلام آباد میں کثیر الجماعتی کانفرنس کل شیڈیول۔ ملک سے بھاگے ہوئے شخص کو سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنانا، اداروں کی تصحیح۔ سیاست کے لیے فٹ اور عدالت کے لیے ان فٹ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ بابر اعوان کا رد عمل۔ آن لائن خطاب سیاسی شعبدہ بازی قرار۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں پھر رد و بدل۔ شہرام ترکئی کو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا قلمدان مل گیا۔ اکبر ایوب بلدیات و دیہی ترقی اور کلندر لودھی وزیر برائے ریونیو ہوں گے۔ دیگر کئی وزراء کے محکمے بھی تبدیل۔ زیادتی کیس کا ملزم 11 روز بعد بھی پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا۔ جگہ جگہ چھاپے بھی کسی کام نہ آئے۔ ملزم کے 6 مختلف روپوں میں خاکے جاری کر دیے گئے ہیں۔ زیادتی کیس ملزم 1، پولیس کی ٹیمیں 28، اہلکار اور افسران 112، کارکردگی 0/0۔ آدھا مہینہ گزرنے کو ہے، چھاپے پر چھاپا، 25 لاکھ روپے کا انعام، بندہ ہے کہ چھلاوا، ملزم ابھی تک ہاتھ نہ آیا۔ ملزم کے ممکنہ روپ بدلنے کے بارے میں مختلف خاکے جاری کر دیے، جس میں عابد علی کے مختلف روپ دکھائے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم ایسا کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے۔ پولیس نے 11 روز کے دوران لاہور، قصور، سائیوال اور ننکانہ صاحب میں کارروائیاں کی، لیکن ہر جگہ سے ملزم بھاگ نکلا۔ پولیس ذرائع کے مطابق عابد جام شورو، بنیر اور ہنگو کے علاقوں میں بھی قیام کرتا رہا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس ٹیمیں سندھ اور KPK روانہ کر دی گئی ہیں۔ کرونا صورتحال سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ملک میں اموات میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں مل رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، تو یوں اموات کی تعداد 6415 ہو گئی، جبکہ مریضوں کی تعداد 3,05,031 تک جا پہنچی، جبکہ 2,92,044 مریض۔ اموات میں اتار چڑھاؤ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 7 اموات ہوئیں۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6,415 ہو گئی، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,05,031 تک جا پہنچی۔ 2,92,044 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ NCOC کے مطابق سندھ میں 1,33,362، خیبر پختونخوا میں 37,270، پنجاب میں 98,272، اسلام آباد میں 16,086، بلوچستان میں 14,138، آزاد کشمیر میں 2,491 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 3,412 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 35,720 افراد کے، جبکہ
जबकि मुल्क भर में 31,26,380 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अरे बंद किए गए हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर से बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनको बंद किया गया है, जहां पर कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, हिफाजती इकदामात अपनाए नहीं जा रहे। ऐसे में हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस के असरात नजर आए। कोयटा, योब, गवादर और डेरा बुगटी में 10 स्कूल ऐसे हैं और एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसे बंद कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ये जानते हैं हमारी नुमाइंदा सादिया जहांगीर से। सादिया, कहेगा हिफाजती इकदामात नहीं अपनाए गए थे यहाँ पर? हिफाजती इकदामात के हवाले से जो महकमा सेहत से हमारी बात है, उनका कहना ये था कि जो स्कूलों में और दीगर जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे सरकारी सतह पर सैनिटाइज़र, मास्क और दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं वो वहाँ पे पहुँचा दी गई थी, क्योंकि 15 सितंबर से मरहलावार जो है सूबे के तालीमी इदारे खोले गए थे, जिसमें 9वीं जमात से लेकर यूनिवर्सिटी के तलबा को इजाज़त दी गई थी कि वो अपने तालीमी इदारों में आकर तालीमी सिलसिला शुरू कर सकें। ताहम कोयटा समेत बलूचिस्तान की जो दीगर अजला हैं, जिनमें योब है और इसके साथ गवादर और डेरा बुगटी हैं, यहाँ से केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें गर्ल्स स्कूल्स हैं, बॉयज़ स्कूल्स हैं। इनमें केसेस रिपोर्ट होने के बाद इन स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी जो सूबे की वाहिद वुमेन यूनिवर्सिटी है, उसे भी ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। जो इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका कहना यह था कि यूनिवर्सिटी में कोई केस तो नहीं आया, लेकिन सूबे भर से तालीमी सिलसिला शुरू होने के बाद ही यहाँ पे जो तलबा हैं और असातिज़ा हैं बड़ी तादाद में हॉस्टल्स में आती हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए जो है यूनिवर्सिटी बंद की गई है, जबकि जो महकमा सेहत है उनकी जानिब से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। स्कूलों में जो शहर के स्कूल हैं वहाँ पे गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और महकमा सेहत की जानिब से रैंडमली टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सादिया। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत इस साल बलूचिस्तान में तारीखी तरक्याती काम करेगी। हमारी खुशकिस्मती है कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल हैं। मजीद कहा कि जाम कमाल वाकई सूबे में तरक्याती अमल देखना चाहते हैं। इसके अलावा असद उमर ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि जाम कमाल बलूचिस्तान की महरूमी को सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल है। असद उमर की जानिब से ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि वफाकी हुकूमत इस साल बलूचिस्तान में तारीखी तरक्याती काम करेगी। दूसरी जानिब पंजाब में अब तक 32 बच्चे और स्कूल स्टाफ के 2 अरकान कोरोना का शिकार हो गए। सिंध में 89 तलबा और मुलाजिमीन में वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 13 असातिज़ा के टेस्ट मस्बत आए। ननकाना साहब और पेशावर में 2 स्कूल बंद करा दिए गए। तालीमी इदारों पर वार, बच्चे और स्टाफ भी मुतासिर। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मुतादिद स्कूल्स बंद करवा दिए गए। पंजाब में स्कूल खुलने के बाद पहले 3 रोज में 32 बच्चे और 2 मुलाजमीन कोरोना का शिकार हो गए। गुजरांवाला के स्कूलों में 24, ननकाना साहब में 7 बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई। भक्कर में 1 बच्चे और 1 स्टाफ, जबकि लोधरा के स्कूल मुलाजिम में वायरस पाया गया। महकमा सेहत ने ननकाना साहब में 2 स्कूल बंद करवा दिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में 2 से ज्यादा बच्चों में कोरोना की तस्दीक पर स्कूल 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। सिंध में तालीमी इदारे खुलने के बाद 89 बच्चों और मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सूबे में अब तक 14,544 बच्चों और स्टाफ के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 13 असातिज़ा में मोहलिक वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत ने पेशावर में 2 स्कूल और 2 इदारों के क्लासरूम्स 5 रोज के लिए बंद करने की सिफारिश कर दी। टांक और मालाकंड के 2 स्कूलों में 1 क्लासरूम बंद कर दिया गया। दीरबाला के निजी स्कूल से भी 2 केस सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ये कहते हैं कि तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। शफकत महमूद ने कहा कि कोई भी फैसला वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक ही किया जाएगा। साथ ही साथ कहा कि 6 माह तालीमी इदारे बंद होने से तलबा को बुरी तरह मुतासिर हुआ। शफकत महमूद ने यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। इससे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत तमाम सूबाई वज़राए तालीम का वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया इत्तफ़ाक़ राय से कि तमाम तर जो स्कूल्स हैं, जो क्लासेस हैं, उनको मरहलावार खोला जा रहा है। पहले बड़ी क्लासेस के जो बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल और PhD के स्टूडेंट्स हैं, उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद अगले मरहले में जो दूसरी क्लासेस हैं उनके तलबा को स्कूल और कॉलेजेस में बुलाया जाएगा। लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि तलबा की सेहत हमारी पहली तरजीह है। दुनिया न्यूज़ की खबर पर एक्शन। मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान आज होगा। वज़ीर आला पंजाब के दुनिया न्यूज़ की खबर पर नोटिस के बाद हुकाम जाग गए। रिजल्ट सितंबर के पहले हफ्ते तैयार हुए। पहले 14 फिर 18 को जारी करने का वादा वफा ना हुआ। क्या नतीजा होगा? तलबा की बेचैनी बढ़ गई है।
दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस। मैट्रिक के तलबा और तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स आज एक ही वक्त में मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान करेंगे। वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर हुमायूं ने बड़ा ऐलान कर दिया। राजा यासिर हुमायूं कहते हैं, मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद किया जा रहा है। नताइज का ऐलान आज एक ही वक्त में 9 बोर्ड्स शाम 5 बजे करेंगे। काबीना के मीटिंग मिनट्स जारी न होने के बायस मैट्रिक रिजल्ट में मुसलसल ताखीर हुई। खबर मुल्तान से है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज अपने दरवाजे अवाम के लिए खुले रखें, वजीर आला पंजाब की जानिब से ये हिदायत की गई है। मज़ीद जान लेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, इजलास का अहवाल बताइएगा, वज़ीर आला ने क्या हिदायत जारी की? आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत मुल्तान में एक खसूसी इजलास हुआ, जिसमें जनूबी पंजाब की तरक्या अमूर हैं, जिनमें बिलखसूस तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। और वज़ीर आला ने रिहाड़ी, मुल्तान, बाती और फाजला कट के दौरों के दौरान जो अवामी मुतालबात सामने आए हैं उन पर रिपोर्ट मांगी है। और उन्होंने कहा हिदायत कि पंजाब के जो सेक्रेटरीज हैं वो अपने दरवाजे अवाम और अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ और सिफारिशात को मलहूज़े खातर रखा जाए, किसी का भी जायज़ काम ना रोका जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर नहीं आना पड़ेगा और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर दिन रात मेहनत। बहुत शुक्रिया, लियाकत अंसारी अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एपीसी में नून लीग का वफ्द शहबाज शरीफ की क़यादत में शरीक होगा। इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का नतीजा जारहाना होने की पेशगोई कर दी। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, शेर आया कह रहे हैं, लगता है शेर को आना ही पड़ेगा। एपीसी के सरबराह जो है वो परसों बैठेंगे और बैठ के एक एहतजाजी लाहे अमल का जो एपीसी का ऐलानिया होगा उस सूरत में जारी होगा। मुझे लगता है कि इस एपीसी का रिज़ल्ट जो है वो बड़ा अग्रेसिव होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा। और पीएमएलएन जो है वो इन हाउस तब्दीली के हक़ में नहीं है। एक बड़ी जमात जो है वो इन हाउस तब्दीली की तरफ जो है वो उसकी तजवीज़ है कि जब ये शेर को ताने इतने मिल रहे हैं तो अब मुझे लगता है कि शेर को अब आना ही पड़ेगा। तो सर, इसका एक बड़ा सिंपल तरीका ये नहीं है कि आप सब लोग रिज़ाइन कर दें नेशनल असेंबली की सीटों से, प्रोविंशियल असेंबली की सीटों से, और इस सिंध में भी इसी तरह पीपल्स पार्टी रिज़ाइन कर दे तो इलेक्शंस कॉल करने पड़ जाएंगे? ये ऑप्शन बी परसों एपीसी की मीटिंग में ज़ेरे गौर आएगा। पीएमएलएन का जो डेलीगेशन है उसको मियाँ शहबाज शरीफ बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको हेड करेंगे। मरियम नवाज साहबा जो हैं वो यकीनन मियाँ शहबाज शरीफ उनको अपने वक्त का हिस्सा जो है वो रखेंगे।